हाँ जी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर. इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव ऑल डन हिस्टोलॉजी ऑफ द गट. जो यस्टरडेज लेक्चर था, तो हिस्टोलॉजी ऑफ गट करी हमने. हिस्टोलॉजी ऑफ गट में वी हैव द 4 लेयर्स. आउटसाइड इज सिरोजा, देन देयर इज अ मस्कुलर लेयर, फिर सब म्यूकोजा और फिर हमारे पास म्यूकोजा. सो दीज 4 लेयर्स आर बेसिकली फाउंड इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द गट, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं as per their functions. For example, we have the additional layer of the oblique muscles in case of the stomach, and we have the submucosal glands in case of the duodenum. So yesterday we have done about the gastric glands. Gastric glands में majorly 3 तरह के cells हैं. Chief cells, second is your peptic cells, और third is your mucous neck cells. तो ये तीनों की जो गैस सिक्रीशंस हैं इनको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं. और इसके अलावा वी डू हैव अ एंडोक्राइन सेल्स आल्सो. सो नाउ नेक्स्ट वी मूव टू आवर फोर्थ लेक्चर. सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. तो हमारे ग्लैंड्स कंटिन्यू चल रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू डू अबाउट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. Intestinal glands. Now, intestinal glands are located in the small intestine. They are located in the small intestine. Now, intestinal glands हमारे पास 2 तरह के हैं. One is called as the Brunner's glands. And second is called as the crypts of Lieberkühn. Crypts of Lieberkühn. The Brunner's glands and crypts of Lieberkühn. जो Brunner's glands हैं, they are located in the submucosa. In the submucosa, they secrete mucus and bicarbonate ions. So this is the Brunner's glands. Crypts of Lieberkühn, they are located in mucosa. तो हमने जब histology करी थी, then I told you this thing कि एक जो intestinal glands है वो जैसे mucosa में है, लेकिन we have the one of the intestinal gland, that is the Brunner's gland, which is located in submucosa also. So located in the mucosa. Now, crypt का मतलब होता है base. Lieberkühn by the name of scientists. So they are located in the mucosa at the bases of villi. Base of villi. तो villi के base पे ये आपके located हैं. That is the crypts of Lieberkühn. Now, if this is our villi, this is the base of villi. ऐसे crypt घूम रही है नीचे से villi इस तरह से. And this is the brush border epithelium. Now, some of the cells of the brush border, they get modified. So we do have a modifications. Some cells, they secrete enzymes. And there are some which are modified endocrine glands also. तो endocrine cells भी हैं. और हमारे पास इस तरह से goblet cells भी पड़े हैं. So since they are located at the bases, जैसे अब ये हमने अगर villi बनाई है, if I am showing you this is villi, of course villi के अंदर this part is the lamina propria, और ये आपका नीचे mucosa के लेयर आ गई. Now there are certain glands also जो इस तरह से आपके पास, अगर मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ इस तरह से, and they are located here also. तो यानी कि ये पार्ट आपका कहाँ आ गया? This part is in the submucosa. तो सबम्यूकोजा के अंदर ये पार्ट आपका लोकेटेड हो गया.
That is submucosal glands. So Brunner's glands and the crypts of Leverkuchen, they are located at the base. Now crypts of Leverkuchen जो है, they contain cells, or I can say modified cells or glands, cells secreting enzymes. Secreting enzymes. तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि द क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन में ये जो हमारे पास जो है, दे आर एंजाइमेटिक सेल्स. So we call them enzymatic cells. Yeah, enzyme secreting cells. Cells. तो ये हो गए. एंड सेकेंड हमारे पास हो गए म्यूकस सेल्स. म्यूकस सेल्स, तो इनका काम क्या हो गया? दे सिक्रीट म्यूकस. इसके अलावा देयर इज वन मोर सेल दैट इज कॉल्ड पैनेट सेल. पैनेट सेल्स. सो पैनेट सेल्स जो हैं, इनका रोल कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट दे आर लोकेटेड एट द बेस. They are zinc containing cells. Zinc containing cells located at the base. Zinc containing cells, they secrete, ऐसा माना जाता है, thought to secrete lysozymes. ये lysozymes secrete करते हैं. Lysozymes are antibacterial in action. Antibacterial action है इनका. तो वी क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन में 3 अलग अलग तरह के सेल्स हैं. यानी ये जो ग्लैंडुलर ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड्स हैं, बेसिकली दे कंटेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. Number 1 is the enzyme secreting cells, number 2 is the mucus cells, and number 3 is the Paneth cells. तो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड्स, इन दोनों की सिक्रीशंस को हम सक्कस एंटारिकस और इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं. तो एज पर एनसीईआरटी लैंग्वेज, इट स्टेटेड दैट the secretions of brush bordered cells along with mucus secreting cells, along with mucus secreting cells. अब mucus secreting cells तो ब्रूनर्स भी हो गए और उसके अपने भी हो गए, constitute Succus entericus. Succus entericus, or we call it as intestinal juice. तो ये हमारे पास क्या हो गया? This is your intestinal juice. तो आपके पास ये जो एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स हैं, तो ये क्या बेसिकली क्या कंटेन कर रहे हैं? आपके एंजाइम सक्कस एंटेरिकस और ये आपका इंटेस्टाइनल जूस. ये जो आपके एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स हैं, किस तरह के ये सेल्स हैं और क्या क्या सिक्रीट करते हैं? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक अलग से लिख लेते हैं. एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स, ये क्या सिक्रीट कर रहे हैं? दे सिक्रीट peptidases. Peptidases में we have aminopeptidase, enterokinase, or we call it as enteropeptidase. Then we have dipeptidases, etc. We do have lipases, lipid digesting enzyme. तो lipases में we have intestinal lipase. Now amylases नहीं है यहाँ पे हमारे पास disaccharidases हैं.
what is there in disaccharidases? We have sucrase, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला, लैक्टेज, लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने वाला, sucrases are there, lactases are there, maltases, isomaltases, or different types of enzymes are there. Sucrases, lactases, maltases, isomaltase और isomaltases. गैलेक्टेज भी होगा ना? Exactly. गैलेक्टेजेस नहीं होंगे इसमें, डाइसैकराइडेसेस. गैलेक्टाई जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम होता है, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम. हम यहाँ जो सिक्रीशंस में है यहाँ पे ये मेनली होंगे आपके. एंड इसके अलावा वी हैव अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, ये भी एंजाइम्स हमारे पास आएंगे. अल्फा डेक्स्ट्रीनेज और वी कॉल देम एज अ लिमिट डेक्स्ट्रीनेज आल्सो. तो ये हमारे पास डाइसैकराइडेसेस आ गए. देन वी हैव पेप्टाइडेसेस हो गए, लाइपेसेस हो गए, डाइसैकराइडेसेस हो गए, एंड वी हैव द न्यूक्लियोटाइडेसेस. न्यूक्लियोटाइडेसेस एंड न्यूक्लियोसाइडेसेस. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमारे पास जो हैं, दे आर ऑल लोकेटेड इन द इंटेस्टाइनल, आई मीन दे आर ऑल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस. तो अगर हम देखें ये वो एंजाइम्स हैं जो कि एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन को बना रहे हैं. क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा इंटेस्टाइन मतलब गट का सिक्रीशन है जिसके अंदर आपके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन बनाते हैं. मतलब एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या हुआ? फॉर एग्जांपल हमने स्टार्च खाया तो अल्टीमेटली क्या बनने वाला? ग्लूकोज. तो लास्ट में जो ग्लूकोज को बना रहा है, मतलब टूटते टूटते जो ग्लूकोज को बना रहा है, जो कि बॉडी ने एब्जॉर्प्शन करनी है जिसकी, वो एंजाइम्स किसके पास हैं? तो वो एंजाइम आपके सक्कस एंटारिकस के पास है. तो सक्कस एंटारिकस contain enzymes for end products of digestion. End products of digestion. तो इसके पास end products वाले enzymes पड़े हैं. Now succus entericus का अगर हम ये बात करें कि what is the composition of the succus entericus, तो वही बात आ गया. इसका जो pH है सक्कस एंटारिकस का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.8 के आसपास है. प्लीज हमारी रेंज हमेशा रहती है 7.4 से लेकर 7.8 के बीच में कहीं भी. और इसका जो रेट है वो रेट कितना है? अगेन इट इज 2 to 3 liters पर डे. तो आई रिपीट वंस अगेन, हमने इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स करी. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. दो तरह की ग्लैंड्स है, ब्रूनस ग्लैंड्स एंड ट्रेप्स ऑफ लिबरकोहन. ब्रूनस ग्लैंड्स they are located in submucosa of duodenum. ये duodenum के submucosa में पड़ी हैं और क्या सिक्रीट कर रही हैं? म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस. And then we have the crypts of Lieberkuhn, and they are located in the mucosa at the base of villi, and there are 3 different types of cells are there: enzyme secreting, mucus cells, and Paneth cells. And in सबकी secretions को collectively we call it as intestinal juice or succus entericus. Apart from this, certain endocrine cells, or we can call it them as argentaphin cells also, cells are present in the lining of villi. तो lining of villi में आपके पास cells पड़े हैं, that is called as a endocrine cells. ये क्या secrete करते हैं? They secrete certain hormones. वैसे तो ये टॉपिक बिल्कुल अलग से आता है, बट हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि जब हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास पहला पार्ट जो आता है दैट इज ड्यूोडेनम, देन इज जेजुनम एंड देन इज इलियम. तो हम यहाँ पे ड्यूोडेनम की बात कर रही हूँ. ड्यूोडेनम के अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स हैं उनके लिए आप ऐसे लर्न कर लीजिए, सेड SED. तो व्हाट सेड स्टैंड्स फॉर? सिक्रेटिन,
then enterogesterone, and then we have the diocrinine. ये हार्मोन एनसीईआरटी के नहीं अंदर नहीं है, पर पहले दो हार्मोन्स का नाम है. नाउ सिक्रेटिन क्या काम करता है? सिक्रेटिन जो है, इट हेल्प्स टू रिलीज और stimulates the release of bicarbonate ions and water from the pancreas, and also inhibit gastric motility, यानी कि स्टमक की मोटिलिटी को कम करता है, बट ये उसका सेकेंडरी फंक्शन है. प्राइमरी फंक्शन उसके ये हैं. एंड रेस्ट जो आपके दो मैंने और लिखे हैं, एंटेरोगेस्टेरॉन और डियोक्राइनिन. जो आपका डियोक्राइनिन है, एंटेरोगेस्टेरॉन, इसका दूसरा नाम भी है, इसको वी ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड. गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड. ये इकलौता कंप्लीट इनिबिटरी हार्मोन है. तो ये क्या काम करता है? इट इनिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एज वेल एज गैस्ट्रिक मोटिलिटी. तो स्टमक की मोटिलिटी को भी कम करता है. नाउ डियोक्राइनिन, इट स्टिमुलेट्स Brunner's glands. It stimulates Brunner's glands, किसके लिए? To release mucus. Mucus and bicarbonate ions. तो ये यहाँ पे इसको हेल्प कर रहा है, ब्रूनर्स ग्लैंड की सिक्रीशन को. सेकेंड हम ऐसे लिख लेते हैं, इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन. इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि तीनों पार्ट, डियोडिनम भी, जेजुनम भी और इलियम भी. यहां से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो यहां से हमने ऐसे कर लीजिए इसको, सी पी वी, पीवीसी कर लो, सीपीवी कर लो जैसे. तो पहला हार्मोन है दैट इज सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन. कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्ट बोलते हैं गॉल ब्लैडर को. काइनिन मतलब होता है स्टिमुलेट करना, यानी इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशंस ऑफ गॉल ब्लैडर to release bile. Then we have pancreozymin. Generally ये हार्मोन इकट्ठा लिखा जाता है, CCKPZ. ये हार्मोन इकट्ठा ऐसे लिखा जाता है. तो cholecystokinin, pancreozymin. Cholecist means gallbladder, pancreo means pancreas, zymin means zymogens of pancreas, और kinin means stimulate. तो क्या समझ आया? It stimulates pancreas to release enzymes or zymogens. Now what are zymogens of pancreas? Trypsinogen, chymotrypsinogen, etc. Then we have villikinin. Villikinin, villi means villi, kinin means stimulate करना. It stimulates the movements of villi to increase the rate of absorption. To increase the rate of absorption. तो ये हमारे पास ये हार्मोन्स भी आ गए कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे सिक्रीट होते हैं. तो हमारा एंडोक्राइन वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाता है. तो डियोडिनम और आपके पास इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन. तीसरा रही कौन सा गया? तो थर्ड जो हमारे पास रह जाता है वो सिर्फ स्टमक रह जाता है.
तो अगर स्टमक से भी हम हार्मोन की बात कर लें, जैसे यहाँ पे हमने स्टमक की बात करी, तो स्टमक से आप बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा था गैस्ट्रिन निकलता है, तो गैस्ट्रिन कहाँ से निकल रहा है? स्टमक से, एंडोक्राइन सेल्स, और इन एंडोक्राइन सेल्स का नाम है जी सेल्स। और कहाँ लोकेटेड है? ये पाइलोरिक रीजन में लोकेटेड है। स्टमक से आपका जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन जो है वो क्या काम कर रहा है? गैस्ट्रिन हेल्प्स इन स्टिमुलेशन ऑफ gastric glands to release gastric juice. तो gastric juice HCl और आपका एंजाइम्स, ये सारे चीजें गैस्ट्रिन की वजह से निकलती है। तो अगर हम क्यूमुलेट कर लें तो एंडोक्राइन पार्ट भी हो गया। और एक यहाँ पे जो है जितने भी हमारे ये आपके गट के हॉर्मोन्स हैं, आई मीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकलने वाले हॉर्मोन्स हैं, सबसे पहले तो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो डिफ्यूज फॉर्म में लोकेटेड है, मतलब कोई लोकलाइज नहीं है। नंबर 2, ये जो हॉर्मोन्स हैं वो ज्यादातर आप ये देखिए सारे ही पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं, सो इनका नेचर पेप्टाइड है। और तीसरा ये पैरा हॉर्मोन्स है ना। व्हाट आर द पैरा हॉर्मोन्स और लोकल हॉर्मोन्स? जो जहां से रिलीज होते हैं उसी के आसपास या उसी ऑर्गन पे अपना काम करते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज लोकल हॉर्मोन्स। तो मैं यहाँ पे नीचे एक ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि जो हॉर्मोन्स released from GIT are from the lining of GIT. GIT are peptide hormones. Peptide hormones and are local hormones. Local hormones का मतलब हुआ they act near or on the site of release. They are not distant hormones जैसे हमने पिट्यूटरी में पढ़े थे। ओके और सेकेंड हमारे पास यहाँ पे जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेल्स हैं, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स विच आर लोकेटेड इन द गट are the example of the diffused kind of endocrine cells. So GIT, gastrointestinal tract, endocrine cells are example of diffused endocrine glands or cells. So इसके साथ ही हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होगी और हमारे हॉर्मोन्स वाला पार्ट भी साथ ही साथ हो गया। नाउ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ये समझ आ गया? मुझे पहले बताइए। Yes, ma'am. Okay, so intestinal glands we have already done. Pranav, Muskan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next we come to, अब हम बात करने वाले हैं about the other glands which are associated, यानी कि salivary, pancreas और liver. तो next we are going to start with the हमारे पास ओके लेट मी स्टार्ट विद, अगर हम बात करें तो ऊपर से शुरू करते हैं, salivary glands. So the glands associated with, so I'll just write it in. The glands associated with digestive tract are salivary glands. Salivary glands. सबसे पहले जो आपकी salivary glands हैं are located outside the buccal cavity but open into
into buccal cavity. वैसे तो हमारे जो बकल कैविटी है उसमें काफी सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, बट हम जो सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो 3 मेन टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर देयर. वैसे रिसेंटली एक चौथी भी अभी ढूंढी है इन्होंने, बट वी विल जस्ट टॉक अबाउट द 3. तो 3 मेन टाइप ऑफ मेन salivary glands are parotid, submaxillary and sublingual. सबमैक्सिलरी को सबमैंडिबुलर भी कह देते हैं. सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर. तो 3 हमारे पास ग्लैंड्स का लोकेशन है. पैरोटिड, ओके, ये पेयर्ड ग्लैंड्स हैं. सबसे पहले तो सारी पेयर्ड है. 3 मेन सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 मेन पेयर्ड. So they are paired. Now, इसका लोकेशन कहाँ है? तो इसका लोकेशन जो है वो यहाँ पे चीक पे है. तो मैं कह भी सकती हूँ इन फ्रंट एंड बिलो ईयर. ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट यहाँ लोकेशन है इसका. तो थोड़ा सा कान के बिल्कुल बेस जहाँ कान खत्म हो रहा है और उसके आगे. तो अगर एक ही लोकेशन बोलनी हो तो चीक भी कह सकते हैं. सो लोकेटेड, लोकेशन चीक है. सो दैट इज योर चीक ग्लैंड्स. तो चीक ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपके पास इधर है. और जहां ये हमारे दोनों जॉस मिलते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, हियर इज द लोकेशन ऑफ द योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड. मतलब एट द एंगल ऑफ जॉस. एक बोलना हो तो आप कह सकते हो कि इट इज द लोअर जॉ, बट अदरवाइज हम दोनों के लिए ये ले सकते हैं. सबलिंगुअल का मतलब क्या हो गया? जीभ के नीचे, यहाँ पे. सो जीभ के नीचे आपके पास सबलिंगुअल, सब मीन्स नीचे, लिंगुआ मतलब टंग. तो सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी, और वी हैव द पैरोटिड्स. तो इसका लोकेशन आ गया आपका चीक पे. चीक पे बोलना है तो हम एग्जैक्टली बोल भी सकते हैं यहाँ पे. दिस इज ऑफ कोर्स बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर. Submandibular at the angle of jaws. और हम कह सकते हैं बिलो लोअर जॉ. सबलिंगुअल below tongue on either side of lingual frenulum. lingual frenulum. तो जीभ में जो नीचे फोल्ड है उसकी दोनों साइड पे आपके पास ये ग्लैंड्स है. तो इसकी जो डक्ट है, नाउ द डक्ट विच इज पोरिंग द सिक्रीशंस. आपको वैसे तो डक्ट का नाम यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं बात करते. तो यहां से ये जो डक्ट है वो इस साइड पे खुल रही है, अपर जॉ वाली साइड. तो आपके पास जो अपर आपका मोलर है, सेकंड मोलर, उसके बेस पे खुलती है. जो बाकी दो हैं यहाँ पे एंगल्स वाली, यानी कि पैरोटिड इज ओपनिंग ऑन द अपर जॉ, और आपकी जो बाकी वाली हैं वो सारी एट द बेस ऑफ बकल कैविटी. तो अगर हम बहुत प्रिसाइज लोकेशंस की बात ना करें तो हम सिंपल यहाँ बात कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ खुल रही हैं. तो हमारे पास जो इसका लोकेशन है वो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. सो नाउ आई विल कम टू द एग्जैक्ट लोकेशंस उनका. नाउ डक्ट्स ओपन. इनकी जो डक्ट्स हैं वो कैसे ओपन करती हैं? डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ स्टेंसन. ये है जी आपकी डक्ट ऑफ वॉटसन, और ये है डक्ट ऑफ रिविनस.
duct of Rivinus. Location and opening of ducts. ये at the base of upper second molar. You can simply say upper jaw. Upper second molar. ये at the base of lower incisors. ये बकल कैविटी का बेस भी लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो बेस ऑफ बकल कैविटी. और ये at the base of tongue. Again, base of the tongue is base of the buccal cavity. तो इसकी जो डक्ट्स हैं वो डक्ट्स ऑफ रिविनस हैं. ये आपके पेयर डक्ट्स हैं, ये भी आपकी पेयर डक्ट्स हैं, और these ducts are 6 to 8 in number. इनका जो नंबर है वो 6 to 8 के करीब हो सकता है. So 3 to 4 here and 3 to 4 here. Now जो आपकी पैरोटिड है, इनकी सिक्रीशंस में क्या है? Secrete saliva. Of course, they secrete maximum amount of salivary amylase. तो जो हमारा एंजाइम salivary amylase है वो सबसे ज्यादा इसकी सिक्रीशंस में है. इधर as far as your submaxillary is concerned, तो जो सबमैक्सिलरी की, यानी कि अगर आप ये देखें तो सबमैक्सिलरी की जो आपकी सिक्रीशंस हैं वो आपके पास मैक्सिमम है. सो दे सिक्रीट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा, approximately 65 to 70% सिक्रीशन. 75 तक भी बुक्स लिखती हैं, 70% सिक्रीशन कहां से है. और ये मेनली सिक्रीट जो आपकी है, इसमें भी सलाइवा है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो अमाउंट है वो आपका म्यूकस का ज्यादा है. तो मेनली सिक्रीट म्यूकस. नाउ अब तीनों की जो सिक्रीशंस है, यानी कि ऑल द secretions of all these kind of glands together called as saliva. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? saliva कहते हैं. Now what is saliva? Saliva is secretions of all salivary glands. सारी salivary gland की secretion को saliva कहते हैं. अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं सलाइवा की, पहले तो पीएच की बात कर लेती हूँ. इसका पीएच इज अप्रोक्सीमेटली 6.8 और इसका डेली जो रेट है वो आपका है 1 से 1.5 लीटर पर डे, यानी 1000 से 1500 ml रोज का सलाइवा बनता है. एज फार एज द कंपोजिशन इज कंसर्न्ड, कंपोजिशन में वी हैव द वाटर. वाटर इज अप्रोक्सीमेटली आपके पास 9% आपका पानी ही है. सो वाटर है, एंड देन वी हैव द एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आयंस हैं, और इवन आपके पास एंटीबॉडीज हैं, सेल डेब्रिस है. सेल डेब्रिस का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी जो बकल कैविटी की लाइनिंग है उसके सेल्स जब खाना खा रहे हैं कुछ है तो सेल्स आपके मुंह में सलाइवा के साथ आ जाते हैं. तो वी डू हैव अ सेल डेब्रिस आल्सो. नाउ एंजाइम्स के नाम पे हमारे पास मेन एंजाइम्स जो हैं वो है जी सलाइवरी एमाइलेज. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टाइलिन.
सेकेंड एंजाइम हमारे पास है जो दैट इज लाइसोजाइम्स. सलाइवा ऑल्सो कंटेन लाइसोजाइम. प्रोटीन्स पे हमारे पास है, एग्जाम्पल इज म्यूसिन जो म्यूकस में है, म्यूसिन, ग्लोबुलिन्स ये पढ़े हैं. एंटीबॉडीज में IgA है. यहाँ पे आयंस के नाम पे पोटेशियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं एंड थायोसाइनेट आयंस भी हैं. थायोसाइनेट आयंस आर एंटीबैक्टीरियल इन नेचर एक्सेट्रा. तो ये भी है. इवन देयर इज अ कंट्रोवर्शियल, जैसे हमारी किताबें तो नहीं लिखती हैं, देयर आर लिंगुअल लाइपेज आल्सो. सलाइवरी ग्लैंड्स दे सिक्रीट लिंगुअल लाइपेज, यानी कि वो एक लिपिड सिक्रीटिंग एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं, बिकॉज सिंस इट इज नॉट गिवन इन आवर बुक्स तो आपको जरूरत नहीं करने की. बट ये लिंगुअल लाइपेज बकल कैविटी में काम नहीं करता. ये सलाइवा के साथ हमारे जाता है स्टमक में और वहां जाकर ये काम करता है, ये मुंह में काम नहीं करता. तो ये हो गया जी हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड्स. तो अभी हमने क्या क्या कर लिया? वी हैव डन विद द salivary glands also. We have done with the intestinal glands also, and we have done with the आपका जो and of course the salivary glands. Okay, so this is all about the salivary glands. और salivary glands के बाद हम आगे आते हैं. That is the next gland we are going to do about the pancreas. तो हमारी अब तक 3 glands हो चुकी हैं. Gastric, then we have done with the intestinal glands, and third we have done with the salivary glands. Now the fourth gland is we are going to start with the pancreas. Now pancreas जो है, this is a compound gland, or we call it as heterocrine gland, or composite gland. Composite gland. Now pancreas जो है, this is a carrot shaped, present in the loop of duodenum. Loop of duodenum, below stomach. Below stomach. So what is the location of this? This is your esophagus and this is your stomach. यहाँ पे आपके पास यहाँ खुल रही है. There's a इस तरह से पैनक्रियास, और ये हमारे पास लिवर से आ रही है ग्लैंड. तो इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे कर लेते हैं. नाउ तो ये एक तरह से समझो कैरेट शेप ग्लैंड है. कई जो पुरानी किताबें हैं उसको वो लीफ शेप ग्लैंड भी लिखती हैं. तो जो उसके बाद NCERT में आया दैट इज कैरेट शेप. तो इट लाइज इन द लूप ऑफ डिओडिनम. तो ये लूप ऑफ डिओडिनम में बिलो स्टमक पड़ी हुई है. नाउ इफ यू कट द सेक्शन ऑफ द पैनक्रियास, अगर मैं इसका ये सेक्शन काट के देखूं, सो दिस इज माय ट्रांसफर सेक्शन. व्हेन वी कट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द पैनक्रियास, व्हाट वी विल सी, इस तरह से वी विल सी यहाँ पे ऐसे लोब्यूल्स, इनको हम कहते हैं पैनक्रियाटिक एसिनाई. Now these pancreatic acini, they are lined by, please tissues का यहाँ पे ख्याल रखिए, they are lined by cuboidal epithelium and it is a simple cuboidal epithelium. And these pancreatic acini, they secrete pancreatic juice. तो ये pancreatic juice को secrete करते हैं और pancreatic juice ये secretions यहाँ पे आ रही है. और फिर यहाँ से जो secretions हैं वो डक्ट्स के थ्रू बाहर निकल रही हैं. और एंड देन फाइनली आपके पास जो बनेगी, दिस इज द, ऐसे पैनक्रेटिक एसिनाई बना सकते हैं हम लोग.
तो आपकी सिक्रीशंस जो बनेंगी, दैट इज द सिक्रीशन से जो डक्ट्स बन रही हैं, दैट इज बेसिकली योर पैनक्रेटिक डक्ट और आपकी pancreatic duct, and then finally it is going to meet with the duct from the liver and together form the hepatopancreatic duct. तो पैनक्रेटिक एसिनाई का रोल है कि पैनक्रेटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करना, यानी कि जो एंजाइम्स पैनक्रियास सिक्रीट कर रहा है वो पैनक्रेटिक एसिनाई से निकल रहे हैं। इसके अलावा वी डू हैव यहाँ पे दिस इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट, और यहाँ पे आपको कुछ सेल्स इस तरह से मिलेंगे इन बंडल्स और ग्रुप्स और क्लस्टर्स, यहां मिलते हैं। So these cells which you find in case of the clusters over here, this is the endocrine part of the gland that is called as the islets of Langerhans. तो pancreatic acini आपका जो था वो exocrine part था, और आपके islets of Langerhans ये आपका endocrine part है। Now there's approximately 1 million clusters, 1 million clusters, almost 10 लाख के करीब clusters हैं, and each cluster has approximately 3000 cells. ये हैं जी हमारे पास islets of Langerhans. तो यहाँ पे हम बात करेंगे, this is the pancreas, और pancreas के दो parts जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, this is the pancreatic acini and those, sorry, I need to write it like this, exocrine part and endocrine part. Okay, so exocrine part, and we have endocrine part. Exocrine part आपका approximately 98 से 99% है, and आपका endocrine part, this is approximately 1 to 2%, and इसको हम कहते हैं islets of Langerhans. इसका डिटेल हम एंडोक्राइन वाले सिस्टम में कर भी चुके हैं। islets of Langerhans में 1 million clusters approximately with 3000 cells of each, again with approximately 3000 cells in each. Whereas pancreatic acini, they secrete enzymatic secretions, along with bicarbonate ions, mucus and water. कुल मिलाकर ये सारा क्या हुआ? That is, I'm talking about pancreatic juice. That is the pancreatic juice. तो यहां से आ रहा। Now islets of Langerhans में 4 types of cells हैं। What are these 4 types of cells? जिसमें से 2 मेन हैं, alpha cells, they secrete hormone glucagon. Beta cells, they secrete hormone insulin. Then we have delta cells, they secrete hormone somatostatin. And we have PP cells that secrete pancreatic polypeptide. So we are not doing details over here for these hormones, we have already done it. Polypeptide. तो ये हम ऑलरेडी एंडोक्राइन में कर भी चुके हैं, और जब भी आगे करेंगे दोबारा अगर हम रिपीट करते हैं तो उसमें फिर दोबारा से कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया इस तरह से। Now, अब since we are dealing with pancreas as its digestive glandular part, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि वो वहां पे एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड आपका कहाँ तक काम करता है, तो हम बात करेंगे पैनक्रेटिक एसिनाई, यानी कि उसकी पैनक्रेटिक सिक्रीशंस की, जो एंजाइमेटिक सिक्रीशंस। ना पैनक्रेटिक जूस जो हमने कहा वो इसका एक्सोक्राइन पार्ट का है। तो पैनक्रेटिक जूस के बारे में, इट्स अ कंप्लीट जूस सबसे पहले तो। क्यों? एज कंटेन एंजाइम्स,
as contain enzymes for the digestion of almost all food products, all food components, all food components. क्या क्या पढ़ा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर पढ़े प्रोटीएसेस. प्रोटीएसेस के नाम पे इट हैज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, देन दे हैव लाइपेजेस. लाइपेजेस में हमारे पास पड़ा है पैनक्रियाटिक लाइपेज, then we have amylase. This is pancreatic amylase. और इसका दूसरा नाम है amylopsin और इसका नाम है स्टेप्सिन. Stepsin is pancreatic lipase. Amylopsin is your pancreatic amylase, another name for this. So amylopsin or stepsin. Then we have nucleases. Nucleases में we have DNAs and RNAs. तो आप जितनी भी तरह के फूड कंपोनेंट खा रहे हो उनको सबको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इसके पास है. नाउ इसका जो पीएच है वो आपके पास अगेन 7.4 से इट कैन रेंज 7.6 तक और इट कैन गो अप टू इवन 7.8. तो मतलब इसी तरह से जो हमने इंटेस्टाइन का लिखा था, आई थिंक सो आई हैव मेड रिटन इंटेस्टाइन में 7.8 लिखा था मैंने. yes, यहाँ पे I'll give you the, it is 7.6 एवरेज लिख देते हैं क्योंकि हम एवरेज यहाँ पे लिख रहे हैं. तो इसका भी एवरेज 7.6 और 7.8 के आसपास है, तो हमने यहाँ पे रेंज दे दी. ओके, इसका डेली रेट कितना है? अगर मैं डेली रेट देखूं इसका, तो डेली रेट इज 500 to 800 ml per day. As per some books, it can be even 1 liter also. So 500 to 800 ml per day, or it can go up to 1 liter also. Now, ये हो गया हमारा पैनक्रियास का. अब जो डक्ट सिस्टम कैसे काम करता है इसके लिए, जो डक्ट पैनक्रियास से आ रही है, this is called as, ये will change the color. ये डक्ट, इस डक्ट का नाम है pancreatic duct, or we call it as duct of Wirsung. Duct of Wirsung. At times we do have some additional duct. कई बार कुछ additional ducts भी आ जाती हैं. तो अगर ऐसी कोई additional duct है, present है, तो that is called as, इस एडिशनल डक्ट को हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं. वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाती है, वो सेंटोरिनी है. और ये आपके पास, दिस इज योर लिवर से आ रही है आपकी कॉमन बाइल डक्ट. तो कॉमन बाइल डक्ट इज ओपनिंग हेयर विद द पैनक्रियाटिक डक्ट. ये और दोनों आपस में जब ड्यूडेनम के अंदर ये जो कॉमन डक्ट बन रही है इनकी, दिस इज, ऐसे कर देते हैं. सो दिस इज योर, ये पोर्शन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. सो दिस इज योर हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. एंड यहां पे एक स्फिंक्टर है जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को कंट्रोल करता है. इसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं. ये पॉइंट फिर दोबारा से लिवर में रिपीट होंगे, तो हम वहां पे इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे. सो दैट्स ऑल विद द
पैनक्रियास। तो वी हैव डन विद द 4 ग्लैंड्स, और अब हमारा लास्ट में पड़ा है लिवर, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वो काफी लंबा है, उसमें काफी सारे फंक्शंस आपके और भी आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमारे पास हिस्टोलॉजी भी हो गई आपकी, और आपकी बाकी चीजें भी होंगी।